बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में 3 तरह के सवालात सिलेक्ट किए जाते हैं, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। आज के इस लेक्चर में और आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 4 में जो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अरेज। इसके इंट्रोडक्शन को आप अच्छे से रीड आउट करेंगे। इन प्रीवियस चैप्टर ऑफ दिस बुक वी हैव रिटन सिंपल प्रोग्राम्स in which less number of variables has been used as numeric or string variables. If we have to use 100 or 1000 different variables in a program, it will become difficult to handle them. For example, a program has to store names of 100 students in a computer. It needs 100 different variable names, so any array can solve these type of problems by defining names instead of contagion memory location defining several names for string different values. Arrays are used to process a large amount of data of same टाइप। इस पैराग्राफ में अरे का जनरल इंट्रोडक्शन बताया गया है कि अरे को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एन अरे। ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर डाटा ऑफ सेम टाइप। ईच मेमोरी लोकेशन होल्ड्स अ सिंगल वैल्यू विच इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ एन अरे। ये आपको इंडिविजुअली भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। डिफाइन एलिमेंट ऑफ एन अरे। ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा ईच मेमोरी से लेकर अरे तक। द अरे इज रिप्रेजेंटेड in the computer's memory by a set of consecutive memory locations. The memory locations are referred to as element of the array. यहाँ तक elements of the array की definition complete हो जाएगी। Each array is given a name and the elements of the array are assessed with reference of their positions or location numbers. This position number is called index or subscript. यहाँ तक इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। द सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स वैल्यू इज रिटन इन पैरेंथेसिस विद द नेम ऑफ अरे। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे हैज एन इंडेक्स वैल्यू ऑफ 0 unless specified otherwise and the index is incremented for each next एलिमेंट। इस पैराग्राफ में से आपको ये तमाम डेफिनेशंस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है जनरल फॉर्मेट सिंटैक्स फॉर अरे। ये भी आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ को आप MCQs के लिए अच्छे से रीड आउट करेंगे। एन अरे इज रेफर्ड बाय इट्स नेम फॉलोड बाय अ सबस्क्रिप्ट इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस when array name or array variable is the variable name of the array, size of array, subscript or index value specified number of data items that it will contain. Each element in the array is given a unique storage location in the array and a subscript or index value is used to identify the position of particular element. The subscript, which may be an integral expression or simple variable, is enclosed in parentheses after the array name. We have only dealt with unsubscripted variable so far, which are simple variables that are only capable of storing one value. An array is called a subscripted variable because when we need to access a certain element we must use a subscript to point to that element so we can differentiate it from the rest. All array elements in an array have the same variable name which is also the name of entire array. An array variable can be numeric or string. For example of, यहाँ पर array के names की कुछ examples given है। आप ये भी MCQs के लिए अच्छे से तैयार करेंगे। इस पैराग्राफ में example को explain किया गया है। यहाँ तक आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक है फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन अरे। ये टॉपिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, हाउ टू फिल एंड प्रिंट एन अरे। तो आप ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। डाटा, स्ट्रिंग और नंबर्स इज एंटर्ड इन एन अरे बाय यूजिंग लेट, रीड और इनपुट स्टेटमेंट. Data may be assigned to the subscripted values or variables in an array. The following programs is to store the string values. It is illustrated
बाय बोथ रीड डाटा स्टेटमेंट एंड इनपुट स्टेटमेंट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, आप इस एग्जाम्पल की भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एक नोट गिवन है, इंडेक्स वैल्यू कैन बी गिवन अ नॉन जीरो इंटेग्रल वैल्यू बट बाय डिफॉल्ट इट इज 0 एंड सो ऑन तक फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद है सेकंड एग्जाम्पल, इसकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट गिवन है डिम स्टेटमेंट। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, व्हाट इज डिम स्टेटमेंट, राइट इट्स सिंटैक्स। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, बाय डिफॉल्ट GW बेसिक प्रोवाइड्स एन अरे फॉर स्ट्रिंग 10 एलिमेंट्स फ्रॉम सबस्क्रिप्ट 0 to 9। ये पॉइंट आपको MCQs के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। वी हैव टू यूज द dim स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट different. If subscript greater than the maximum specified is used, a subscript out of range errors occur. The maximum number of dimensions for an array is 255. Syntax तक आपका ये short question complete हो जाएगा। When subscript variables are used in a program, certain information must be considered before applying. सबसे पहली condition है name of subscript variable, then size of the subscript variable. We can define more than one array variables in one dim statement as mentioned in the above syntax. Subscripted variables may be string or numeric. यहाँ पर dim statement से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं, आप इन एग्जाम्पल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इस पेज पर एग्जाम्पल नंबर 3 का सोल्यूशन गिवन है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।